Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School from Jaipur. Okay students, class 10, now continue. Yesterday we discussed about the exercise 7.3 coordinate geometry. Now already before it, question number 1, 2 already discussed the area of triangle and also prove the area of triangles. How can we prove? And also learn the area of triangle technically, half into then x1 and in bracket y2 minus y3 then plus x2 and y3 minus y1 and plus x3 bracket y1 minus y2. Now today we discuss these three questions, last three questions, and after that this chapter is the complete. And after that tomorrow we can start that introduction of trigonometry, that is the very important branch of the trigonometry of mathematics. इसको मिस मत करिएगा, ये आगे चलकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके काम आएगी और क्लास 11th और 12th में तो आपको काम आना ही है. अगर आप सब्जेक्ट मैथ्स नहीं भी लेते हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिगोनोमेट्रिक एक बहुत ऐसा पार्ट है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. तो 10th बेसिस पे ट्रिगोनोमेट्रिक 100% आएगा. तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप कभी मिस ना करें और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, तो आप बहुत ही उसको ध्यान से पढ़िएगा. ओके, नाउ टुडे वी डिस्कस फॉर थ्री क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट फॉर एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज 7.3 in exercise. What is the question number 3? Third is given, find the area of triangle formed by the joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this are given. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. That means one triangle is given. Suppose this triangle is given ABC and their vertices are also given. A given, B given and C given. First vertex is given 0, minus 1. 0, minus 1. And second vertex is 2, 1. 2, 1. And third vertex is 0, 3. And next triangle is formed by the joining the midpoints of all three sides. Now midpoint, take the midpoint, this one, this one, this one. P, Q are the midpoints of AB and BC and AC respectively. Now join these 3 points. So we get the new triangles, this one. So find the area of triangle PQR. अब area of triangle PQR आपको कैलकुलेट करना है, तो first you calculate their vertices. How can we find out? This is the midpoint. Use the formula of midpoint. Midpoint का formula मैंने आपको बताया था, x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. It is the midpoint. So first find the point P. What is the point P? मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ. 0 plus 2 upon 2 and comma minus 1 plus 1 upon 2. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. It is 2 upon 2 is the 1 and it is the 0, so 1, 0. So this point is 1, 0. Now then Q. What is the Q? Q is the midpoint of BC. So 2, 0. Sorry, 2 plus 0. 2 plus 0 upon 2 and 1 plus 3. 1 plus 3 upon 2. That is 2 upon 2 is 1 and 4 upon 2 is the 2. Next is the R. R is the midpoint of AC. So 0 plus 0 upon 2 and comma minus 1 plus 3 upon 2. So is equal to, it is 0 and it is 2 upon 2 is the 1. 0, 1 and it is 1, 2. Now we get the midpoints of AB, BC and AC. Now easily you calculate the area of triangle PQR. Triangle PQR is the half bracket x1 then y2 minus y3 and plus x2 and y3 minus y1 and plus x3 y1 minus y2. It is the formula of
ट्रायंगल। फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, मैंने टेक्निकली लिखा है जो मैंने आपको कल बताया था टेक्निकली लर्न करने का मेथड। सो फाइनली फाइंड द एरिया पी क्यू आर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, x1, व्हाट इज x1? अब मैं यहाँ पे x1 ये ले रहा हूँ, 2 ये ले रहा हूँ, 3 ये ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। दिस इज द 1। अब ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं, y2 माइनस y3, 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देन ये y कोऑर्डिनेट है, तो 2 माइनस 1, देन प्लस x2 is the 1, ब्रैकेट, इन ब्रैकेट y3 माइनस y1, 3 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 माइनस 0, एंड प्लस x3 यहां है, सो 0, तो 0 के साथ में तो कुछ भी लिखो, मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आना है, एंड y1 माइनस y2 मीन्स 0 माइनस 2। चलो बहुत ही इजी हो गया ये। हाफ ब्रैकेट दिस 2 माइनस 1, 1 into 1 is 1 एंड प्लस 1 into 1 is 1 और वो 0 हो गया फाइनली। सो इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस 1 इज द 2 और 2 अपॉन 2 इज द 1। इट इज द फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में, तो नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो एबीसी। अब आपको एबीसी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो आप वही यूज करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको A1 और 2 के साथ चलना है, तो 1 मैं ये ले रहा हूँ, 2 ये ले रहा हूँ, 3 ये ले रहा हूँ, मीन्स x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 0, तो 0 एंड ब्रैकेट y2 1 माइनस 3 एंड प्लस again x2 is the 2 and bracket y3 minus y1, so y3 is the 3 minus plus 1, so 3 plus 1 plus x3, now x3 is 0। अरे वाह, ये तो और भी इजी हो गया, 0 मल्टीपल कैलकुलेशंस में इजी हो गया, 0, तो नाउ 0 and y1 minus y2 means y1 minus y2 minus 1 and minus 1, so minus 1 no problem is equal to half। देखो ये पार्ट 0 बन गया, ये पार्ट भी 0 बन गया, तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 3 plus 1 4 and 4 into 2 is 8 and plus this is 0, so finally 1 upon 2, इसको थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, is equal to 1 upon 2 into 8 और 8 upon 2 is equal to 4 number 2। रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज 4 और उसका पार्ट आप फाइंड किया 1, तो 4 रेशियो 1, दोनों रेशियो कोई कट नहीं हो रहा, सेम नंबर, तो यही आपका आंसर है, 4 रेशियो 1 इज द फाइनल आंसर। एरिया भी फाइंड आउट किया और आपने रेशियोज भी कैलकुलेट किया। टाइम को देखते हुए हम एक बार वापस से क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर व्होज वर्टिसेस आर गिवन। इस बार आपको क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, बिकॉज इट इज द क्वाड्रिलेटर इज गिवन ABCD। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, बट देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। फर्स्ट वर्टेक्स -4 -2, सेकेंड इज -3 -5, थर्ड इज 3, -2, 3, and 2, 3 and 2, 3। जब आपके सामने वर्टिसेस आ गए, you know that any one diagonal in a quadrilateral divide in 2 triangles. You can join A to C or maybe B to D, दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और now you can find out this triangle and second triangle. You can first find the area of triangle ABC, square unit.
मे बी सपोज ये ऐसा आंसर आ रहा है। अब ये आंसर कैसे फाइंड आउट करना है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेकर। फॉर्मूला वही है, कैलकुलेशन आपको करनी है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ADC इज इक्वल टू, इस बार आप क्या करेंगे, x1 y1 ये लेने दें, x2 y2 ये ले लें, x3 y3 सेम। वापस क्या आएगा, लेट कर लेते हैं, इसका y आ रहा है, y स्क्वायर यूनिट्स। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ फाइनली क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, दोनों ट्राइंगल्स को ऐड कर लीजिए, ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ADC। अगर वहां नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC। दिस इज x एंड दिस इज y। दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको सिंपली एक वैल्यू मिलेगी और वही आपका आंसर होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैंने कंप्लीट आपको इजीली फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। आप इजी फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो है 5, this is the different and it is the last question. 5 is given that, first read the 5 question. आप लोग अपनी बुक्स में देखो, what is the last question 5. So this question is given, question number 5 is given. You have to study in class 9 that a median of a triangle divide into two triangles of equal areas. So verify the result for triangle ABC whose vertices are given ABC. That means अगर नहीं भी given हो तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। First thing, what is the median? Median means किसी भी एक, you take the midpoint of any side. Suppose you take the midpoint of BC. ABC, it is the D. D is the midpoint of BC and join AD. So what is the property of median? This median, AD is the median. This median is the divide in two triangles, okay? And in equal areas. ये हम 9 पे भी पढ़ चुके हैं। तो इस बार हम vertices के basis पे हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। Now here vertices of A is given 4, -6. And second vertex 3, -2, and next vertex 5, 2. अब D का कोऑर्डिनेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मिड पॉइंट ऑफ BC, सो 3 + 5/2, 8/2, 8/2 इज द 4, -2 and +2 is 0, तो 4, 0, तो ये आपका आ जाता है 4, 0। Now first again you calculate the area of triangle ADB. Same. Easily ABD, वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 के बेसिस पे। Now find the area of triangle ADC. अब आपको यहाँ पे ये शो करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो डेफिनेटली अगर ये प्रॉपर्टी सेम, इजीली अगर प्रॉपर्टी ट्रू है तो ये डेफिनेटली इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं आपने गलती करी है या फिर कहीं कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम है। ओके, तो क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजी हैं। आपको वेरीफाई करना है, सिंपल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB is equal to area of triangle ADC. That means here x is equal to y. ये दोनों पार्ट इक्वल आएंगे तभी ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। ओके स्टूडेंट, ये मैंने प्रूव किया है मीडियन के बेसिस पे। तो डोंट वरी, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है 7.3 और लास्ट एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे। तो मैं क्लास को यहाँ कंप्लीट करता हूँ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो आज आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में अब हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू एंड गुड डे।